آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ مرکزی میلاد جلوس کے لیے کمشنر پولیس اور کمشنر جی ایچ ایم سی سے ملاقات، مجلسی ارکان مقننہ کے ہمراہ کمیٹی کے وفد کی تفصیلی نمائندگی۔ چیف جسٹس کے ہاتھوں ڈگری لینے سے حیدرآباد کی نلسا یونیورسٹی کے طلباء کا انکار، ممبئی کالج کنونشن ملتوی، حیدرآباد کی تقریب پر تجسس برقرار۔ وزیراعظم کی پوسٹ کو ری ٹویٹ کرنے پر گرفتاری، فری لانس صحافی حسن صدیقی کو مجلس کی قانونی امداد کے بعد ملی ضمانت۔ ریاست تلنگانہ میں ایس آئی آر کا عمل مکمل، 78.30% فارمز ڈیجیٹلائز، تقریباً 1 کروڑ کے قریب ووٹر کے نام حذف ہونے کا خدشہ۔ جڑمٹلہ میں بریک کے مرمتی کام کے دوران بس آگے نکل گئی، پہیے کے نیچے آ کر میکینک کی برسر موقع فوت۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے عہدیدار اور اراکین نے مجلسی اراکین اسمبلی کے ہمراہ کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کرنن آئی ایس سے ملاقات کرتے ہوئے شہر حیدرآباد میں مرکزی میلاد جلوس کے دوران انتظامات کے لیے تفصیلی نمائندگی کی۔ اس طرح مرکزی میلاد جلوس کی اجازت اور پولیس بندوبست کے لیے کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار آئی پی ایس سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں بھی کمیٹی کا مکتوب حوالے کیا گیا۔ مجلسی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اور رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہمراہ مرکزی میلاد جلوس کی کمیٹی کے وفد نے کمشنر جی ایچ ایم سی سے تفصیلی نمائندگی کی۔ شہر حیدرآباد میں 12 ربیع الاول کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد سے مرکزی میلاد جلوس نکالا جائے گا۔ اس ضمن میں صفائی، سجاوٹ، خیر مقدمی اسٹیجز اور دیگر انتظامات کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی۔ اس پر کمشنر جی ایچ ایم سی نے متعلقہ عہدیداروں کو پابند کرنے اور ضروری اقدامات کا تیقن دیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے کمیٹی کے وفد کو تیقن دیا کہ مرکزی میلاد جلوس کے انتظامات میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ پولیس بندوبست کو مؤثر بنایا جائے گا، جلوس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملک کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت کو ایک باوقار قانونی یونیورسٹی کی کانویکیشن تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیے جانے کی تجویز پر طلباء میں ناراضگی سامنے آئی ہے۔ حیدرآباد کی نیشنل اکیڈمی آف لیگل اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے آخری سال کے طلباء کے ایک گروپ نے یونیورسٹی انتظامیہ سے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے۔ تقریباً 450 طلباء نے دستخط کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کو اپنی درخواست پیش کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے ہاتھوں ڈگری حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ طلباء کے اعتراض کی بنیادی وجہ 20 جولائی کو دہلی کے جنتر منتر پر چلو سنسد احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر درخواست ہے۔ یہ احتجاج کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں نیٹ امتحان کے انعقاد اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے حلقے ملک پیٹ کے نوجوان حسن محی الدین صدیقی جو فری لانس صحافی بتائے گئے ہیں، ان کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ قابل اعتراض ٹویٹ ری ٹویٹ کرنے کے معاملے میں گرفتاری کے تقریباً 3.5 ماہ بعد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی قانونی کوششوں سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔
पंजाब पुलिस ने 25 अप्रैल को हैदराबाद से हसन मुहिउद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार करके चंडीगढ़ मुंतकिल किया था। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के हल्के मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की रहनुमाई में मजलिस की लीगल टीम ने सिद्दीकी की रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई की। तेलंगाना आरटीसी के वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागिरेड्डी ने हैदराबाद के बस भवन में मुनक़िदा तकरीब में एक पैर से महरूम कोरटला के ड्राइवर एमडी मदार के अफराद ख़ानदान को 50 लाख रुपए का चेक हवाले किया। करीमनगर ज़िले के कोरटला डिपो में ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले एमडी मदार 9 अक्टूबर 2025 को हुए एक हादसे में एक पैर से माजूर हो गए थे। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरम्मा हाउस टावर्स स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख में 5 दिन की तोसी कर दी है। मकानात के वजीर पी श्रीवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि अहल दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त 15 अगस्त तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्तें जमा करवाने की असल आखिरी तारीख 10 अगस्त थी। मुसलसिल तातीलात जिनमें दूसरे हफ्ते का हफ्ता और बोनालू त्यौहार शामिल हैं और आवाम के मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के पेश नज़र आखिरी तारीख में तोसी की गई है। एक सरकारी बयान के मुताबिक 21 जुलाई से मी सेवा मराकज़, ऑनलाइन पोर्टल्स और मी सेवा व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। रियासत तेलंगाना में एसआईआर के पहले मरहले का अमल मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत में जुमला राय दहिंदों की तादाद 3,38,26,448 थी। इन राय दहिंदों के मुंजुमला 2,64,87,214 एनुमरेशन फॉर्म्स डिजिटलाइज किए गए हैं। बताया गया है कि 9,22,230 फौत हो चुके अफराद के फॉर्म्स नहीं दिए गए। तकरीबन 11,25,446 वोटर्स के साथ रवाबित में नहीं हुआ है। 45,18,991 दूसरी जगह मुंतकिल बताए गए हैं। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास राय दहिंदों के नामों के हज़फ होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने तालमी शोबे में गैर मामूली मुजाहरा करने वाले गरीब ख़ानदानों के तलबा को लैपटॉप का तोहफ़ा दिया है। गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत केटीआर ने आईआईटी खड़गपुर में बायोटेक्नोलॉजी की नशिस्त हासिल करने वाले किसान के बेटे और वर्धनापेट की साकिन किसान की बेटी फरदाना को इन तोहफ़ों से नवाजा है। बताया जाता है कि फरदाना सिविल सर्विसेज की तरबियत हासिल कर रही है और उसका तालीमी रिकॉर्ड भी इंतहाई शानदार बताया गया है। केटीआर ने दोनों तलबा की हौसला अफजाई की और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उप्पल एसओटी पुलिस ने बोर्ड उप्पल में गल्फ बेकर्स पर धावा करते हुए केक की तैयारी के मूल्य मुबैना इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म हुई अशिया के इस्तेमाल से पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सिलसिले में बेकरी के मालिक को भी तहवील में लिया है। भारी मकदार में नाक़िस मिलावटी अशिया को जब्त किया गया है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
جرمٹلا بس ڈپو میں کام کے دوران بس کے نیچے آ کر میکینک کی موت ہو گئی۔ مہلوک کی شناخت 29 سالہ سنتوش کمار کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سنتوش بس کے نیچے بریک کا کام کر رہا تھا کہ اچانک بس مبینہ طور پر آگے نکل پڑی اور سنتوش بس کے پہیے کے نیچے آ کر برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس میں بریک کی خرابی پر سنتوش مرمتی کام کر رہا تھا۔ جس وقت سنتوش کام کر رہا تھا ڈرائیور نے اسے نہیں دیکھا اور بس کو آگے بڑھا دیا۔ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیر اور منگل کی درمیانی شب مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے سابق فوجی اور 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس حادثے کا CCTV سامنے آیا ہے جس میں تیز رفتاری سے آ رہی کار پہلے بائک سے ٹکراتی ہوئی دیکھی گئی۔ سابق فوجی روندر کی مقام واقعے پر ہی موت ہو گئی تھی۔ جو کار اس حادثے کے لیے ذمہ دار بتائی جا رہی ہے اس کا ساکن شمس آباد کا کرانتی گوڑ بتایا گیا ہے۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ رشتہ داروں کے پاس بونالو تہوار منانے کے بعد کرانتی گوڑ مبینہ نشے کی حالت میں لوٹ رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ جلپلی سرکل پہاڑی شریف ڈویژن 64 کی عوام نے شکایت کی ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ سے وہ ڈرین لائن کے مسائل اور کچرے کے انبار سے جوجھ رہی ہیں۔ عوام کی شکایت کے سماعت کے لیے جلپلی میونسپلٹی مینیجرٹی پریزیڈنٹ شیخ افضل اور وائس پریزیڈنٹ سید حسین نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات بھی کی۔ جواہر نگر پولیس نے ایک خانگی اسکول میں 10ویں جماعت کے طالب علم کو مار پیٹ کرنے والے 10 ساتھی طلباء اور اس واقعے کو چھپانے اور متاثرہ لڑکے کے والدین کو غلط اطلاع دینے کے الزام میں 3 ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اسکول پرنسپل کے علاوہ ہاسٹل وارڈن اور ہاسٹل انچارج کو گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ متاثرہ لڑکے کی فوٹو اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لڑکے کے والدین نے پولیس اسٹیشن رجوع ہو کر ایک شکایت درج کروائی تھی۔ DCP ملکاج گری زون نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات سے واقف کروایا ہے۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے اندر श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में इस महीने 7वां तारीख को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक माइनर बॉय को उसका क्लासमेट्स 9 मेंबर्स मिलके एक छोटा सा झगड़ा में उसको मारता है। वो मारने में उनको ग्रीवियस सीवियर इंजरीज इनको लगता है। वो मारने के बाद कॉलेज मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और वार्डन में भी इस इश्यू को सबसाइड करने के लिए उसको मदर को बुला के आपका बच्चा स्टेज से गिरा हुआ तो इंजरीज हो गया बोल के तो पूरा इश्यू को डाइवर्ट करके उस बच्चे को उसका माँ से घर को भेजता है। घर जाने के बाद उस माँ ने आइडेंटिफाई करता है इसको वो उसको देख के इंजरीज को देखने के बाद उसको मालूम पड़ता है किसी ने इसको मारा है। तो आफ्टर कंफर्मिंग द इश्यू दे गेव वो पुलिस स्टेशन जवाहर नगर पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट लॉन्च किया। इनके साथ जो जुवेनाइल बच्चे होते हैं उस पर लीगल एक्शन होता है। उसके साथ प्रिंसिपल वार्डन और ब्लॉक इंचार्ज तीनों पे भी इश्यू को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी रहता है उनके ऊपर उसको वायलेट करके ये इश्यू को पूरा सबसाइड करने के लिए कोशिश किया। इसके बाद से उन लोगों ने भी हम केस रजिस्टर करके आज कोर्ट के सामने पेश कर रहा है। KBR पार्क के अतराफ फ्लाई ओवर्स और अंडर पासों के जारी तामीरी काम के पेश नज़र
मंगल 18 अगस्त से KBR पार्क हैदराबाद के इर्द गिर्द एक तरफा ट्रैफिक का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मंगल 11 अगस्त को ऐलान किया कि मतलूबा मुकामात पर लेन मार्किंग और लेन चेंजेस का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरे इक़दाम जो हमवार मुसाफिर के लिए उठाए जाएंगे उनमें गूगल मैप में ज़रूरी रूट तब्दीलियाँ करना शामिल है ताकि लोगों को उनके सफ़र की मनसूबाबंदी में मदद मिले और अहम मुकामात पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर ट्रैफिक इशारे लगाए जाएंगे। मंगल को शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार IPS ने कहा कि ट्रैफिक इंतजामात 1.5 से 2 साल तक होंगे जबकि सड़क प्रोजेक्ट का काम इस अरसे में जारी रह सकता है। अगर इक़दाम कामयाब रहे तो काम 24 घंटे जारी रखा जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इस साल भी यौम आज़ादी की सरकारी तकरीब गोलकुंडा किले में मनाई जा रही है। इस तकरीब में होने वाली परेड के सिलसिले में रिहर्सल गोलकुंडा किले में की जा रही है। तकरीबन 250 पुलिस एहलकार इस रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी यौम आज़ादी की मुनासिबत से गोलकुंडा किले में परचम कुशाई अंजाम देंगे। राडियो न्यूज़ की दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। लोकसभा में शोरगुल के दरमियान नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तरमीमी बिल और केरलम नाम की तब्दीली के बिल को मंजूर कर लिया गया। इससे पहले सुबह 11 बजे इजलास के आगाज़ के बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था। दोपहर 2 बजे के बाद 2 बिलों को मंजूर किया गया और कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। है चर्चा करने की, जब आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल केरलम बिल के उनको भी बोलने नहीं दिए। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या? चर्चा नहीं चाहते, आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं। 2 अच्छे बिल भी पास हुए हैं, चर्चा करने का मौका था। पार्लियामेंट के बाहर भी आज इंडिया इत्तेहाद के अरकान ने हुकूमत के बिलखुसूस वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। एहतजाजी अरकान वज़ीर दाखिला अमित शाह की तस्वीर वाले बैनर्स थामे हुए थे जिस पर अमित शाह जवाब दो का नारा दर्ज था। एहतजाज में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जया बच्चन और दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। पार्लियामेंट के बाहर आज एनडीए के अरकान ने भी एहतजाज किया। राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए। एनडीए के अरकान झारखंड पेपर लीक को लेकर नारे लगा रहे थे। इस दौरान एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के अरकान एक दूसरे के सामने आ गए और नारेबाजी में शिद्दत देखी गई। प्रियंका गांधी के सामने राहुल गांधी को लेकर नारे लगाए गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के तलबा से बातचीत की है। इंडिया इत्तेहाद के अरकान का आज मंगल मिलन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुए इस प्रोग्राम के दौरान तिरंगा लहराया गया और नारे लगाए गए। मरकज़ी वज़रा, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। Vande
कांग्रेस एमपी पवन खेरा ने कहा है कि पार्टी इस मुतालबे पर कायम है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को ऐवान में आकर राम मंदिर चंदा स्कैम और जंतर मंतर पर तलबा के खिलाफ की गई कार्रवाई का जवाब देना चाहिए। पवन खेरा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को भी इन दो वाक़यात पर आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। पवन खेरा ने कहा कि हम गुज़िश्ता 17-18 दिनों से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला ऐवान में आकर बयान देने में खौफ महसूस कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने कहा है कि अगर बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के ऐवान में वो आने वाले हैं तो क्या वो मुल्क पर एहसान कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि बीजेपी इस सिलसिले में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह को जंतर मंतर पर हुए तलबा पर जुल्म का जवाब देना पड़ेगा। झारखंड के डमका और दूसरे अजला में मुआयना पेपर लीक और तखर्रुरात स्कैम के सिलसिले में बीजेपी की तरफ से बंद मनाया जा रहा है। बीजेपी के कारकुन कई मुकामात पर एहतजाज करते हुए देखे गए, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई थी। रियासत की हुक्मरान जमात JMM और कांग्रेस के खिलाफ भी नारे लगाए गए। बाज़ मुकामात पर बीजेपी के एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। बीएसपी सरबराह मायावती ने हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस को पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि अवामी मफादात के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। दोनों पार्टियों के दरमियान अंदरूनी मफाहमत हो सकती है ताकि अवाम की तवज्जो अहम मसाइल से हटाई जा सके। मायावती ने कहा कि बीएसपी जेनजी के साथ खड़ी है और तलबा उनके सरपरस्तों की तशवीश व मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बीएसपी जेनजी के मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा आगे रहेगी। अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह या तो इनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इनकी अंदरूनी मिली भगत है, या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है। और तमिलनाडु असेंबली ने नीट की मनसूखी के मुतालबे को लेकर असेंबली में करारदाद को मंजूर किया है। रियासती वजीर सेहत अर्जुन राज ने आज करारदाद असेंबली में पेश की और इस करारदाद में कहा गया है कि नीट दही समाजी और मुआशी तौर पर पसमानदा तलबा के तिबी तालीम के मौक़ों को नुकसान का बायस बन रहा है। बताया गया है कि अहम पोजीशन DMK, AIADMK और कांग्रेस ने इस करारदाद की तायीद की है, जबकि बीजेपी ने इस कार्रवाई के दौरान वॉकआउट किया। बॉलीवुड फिल्म अदाकार और सियासी लीडर प्रकाश राज ने दावा किया है कि SIR के बाद बेंगलुरु हल्के में हज़फ किए गए 65 लाख वोटों में इनका वोट भी शामिल है। उन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया पर एक सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए अपने रद्दमल का इजहार किया है। प्रकाश राज ने वीडियो में कहा कि SIR के बाद बेंगलुरु हल्के में हज़फ किए गए 65 लाख वोटों में मेरा वोट भी शामिल है। ये बात इंतहाई मुज़क्किर ख़ेज़ लगती है। मैं इसी हल्के में पैदा हुआ, यहीं रहा और अपनी पूरी तालीम भी यहीं मुकम्मल की। मैंने अदाकारी की तरबियत भी यहीं हासिल की। सबसे अहम बात यह है कि मैंने इसी हलके से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर भी इलेक्शन लड़ा था, उसके बावजूद मेरा वोट हज़फ कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में मुजवज़ा यौम आज़ादी की तकारीब के सिलसिले में गैर मामूली पुलिस और सिक्योरिटी का बंदोबस्त देखा जा रहा है। श्रीनगर के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम भी अंजाम दी जा रही है। अहम मकामात जहाँ यौम आज़ादी की तकारीब होने वाली है वहाँ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है।
उत्तराखंड के चामोली में मुसलसल बारिश और ज़मीन खिसकने के वाक़यात में एक ब्रिज बह गया है। बताया जा रहा है कि मलारी के पास ये ब्रिज बहा है। इस वाक़े के बाद आमद रफ्त की खिदमत मुतासिर हुई है। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कई देहातों से राब्ता मुंतक़ा हो गया है। गाँव वालों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की अपील की गई है। आसाम में सैलाब से मरने वालों की तादाद 100 से तजावज़ कर गई है। 10 अजला में तकरीबन 1,30,000 लोग मुतासिर हुए हैं। कई अफराद अभी भी शेल्टर होम्स में पनाह लेने पर मजबूर है। आवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। भोपाल में भी बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बताया जा रहा है कि सबवे भी पानी से भर चुका है। आवाम को आमद रफ्त के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी मिला जुलूस के लिए कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर GHMC से मुलाकात। मजलिसी अरकान मुखन्ना की हमरा कमेटी के वफद की तफसीली नुमाइंदगी। चीफ जस्टिस के हाथों डिग्री लेने से हैदराबाद की निलसार यूनिवर्सिटी के तलबा का इनकार। मुंबई कॉलेज कन्वेंशन मुलतवी। हैदराबाद की तकरीब पर तजस्सुस बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म की पोस्ट को रिट्वीट करने पर गिरफ्तारी। फ्रीलांस सहाफ़ी हसन सिद्दीकी को मजलिस की कानूनी इमदाद के बाद मिली जमानत। रियासत तेलंगाना में SIR का अमल मुकम्मल। 78.30% फार्म्स डिजिटलाइज। तकरीबन 1 करोड़ के करीब वोटर के नाम हज़फ होने का खदशा। झिलमिटला में ब्रेक के मरम्मती काम के दौरान बस आगे निकल गई। पहिए के नीचे आकर मैकेनिक की बरसरे मौका फौत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।